Hello everyone. Hello. Yeah, hello Nico, you're here. Okay, welcome. Hi, hi. Hi, Good hi. to see you. Okay, fine. So today being the first class, I just give some time. So everyone should be acquainted with. Okay. 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 Completely I fine. just wait, I give some time because today being the first Sure, day, sure. everyone should be acquainted and familiar. Sure, So sure. there are lots of people here. I can see most of them are known people. So many of them are new. Okay. So I give another 5 minutes so that everyone can connect. Okay. 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 Since I can't find the name. So Galaxy J75 Prime. Can you introduce yourself? Galaxy J7 Prime. Yes, sir. Yeah, what's your name? Priyanka Kalita. Okay, Priyanka Kolite. Okay. Anyway, since we are already short of time, you can understand that Zoom meetings for time is limited within 40 minutes, so everyone may know. So without wasting much time, I should start my first class. Today will be the first introduction part of the course we are going to do. So first of all, I should let you everyone know the medium of any communicating with will be English and Hindi also. Okay, because everyone should be familiar. So I will be not wasting much time because we are already short, as I told you. So first of all, I should tell you that there will be more classes further. Okay, I will let you know if you are actually interested. I will let you know. I'll update you about the later dates and times. Okay. So you can understand within only one course of 40 minutes, I can't cover all the topics which we are actually interested in interior designing. So I should first tell you one thing, that it's not because that you have to seek interior degree, interior design or something like that. Everyone actually can understand, every person, every human being is an actually interior designer himself or herself. Why? You can obviously find yourself sometimes, if your own house, you're not a technical person, you're not an interior designer, still sometimes you feel that यार ड्राइंग रूम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए यार, बेडरूम ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, what are this, ये सब चीज जो हमारे पास फीलिंग्स आती है ना, दैट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग आल्सो. So anyway, without wasting time, I should start my slides. I show you. Can we just record this just Yeah, in yeah, yeah. case I want to refer it? Already being I am the host, the recording is already going on. So I'll be posting the recordings later in the social media so everyone can find it, or I'll also be expecting valuable feedbacks from you. Okay. 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 Okay, I just now share the PPTs I have just prepared. So this is what we are calling this free online tutorials. Okay. Okay. So what will be basically covering in this online courses, which will be, I think I will conduct at least 5 to 7 online classes like this. So I have just named the course, the topic I have conducted, basic fundamental principles, elements of planning, interior design and decoration, along with basics of software tools like AutoCAD, 3D Max, Google SketchUp and Adobe Photoshop. So I just introduced myself because most of the people may not know me. So myself, architect Mahbubul Alam. So have my own office, an architect office, as in the name of Architectural Studio. And also I should tell you that I am also the interior faculty in INFD Center. INFD is the International Institute of Fashion Design. So they also provide interior courses there. So I also teach there. So presently I'm teaching as a online courses also there. So this is not actually from the part of the INFD Center, which I'm also in interior. This is from myself. I feel that in the lockdown period, I should provide some time to you who are basically interested in interior designing or related topics. Okay. So first, again, I tell you the thanks for everyone for joining me, and I'll be very grateful after the classes, every classes. As I told you, I will be conducting 5 to 7 classes. So I'll be posting the videos and share the pictures in the social medias. So I'll be obviously expecting valuable feedback from you. Okay, in the social medias. Now, today will be the first chapter which I named as Introduction to Interior Design. Now, as I told you, that interior design is something which is actually in every people. As I already cited an example, we often in our own home where we stay, in the living room, in the bedroom, we prefer some changes. Changes चाहिए. Sometimes we feel that ये boring हो गया, यार ये maintenance खराब हो गया. Whatever may be the reason, we find ourselves that हम लोग हमेशा कुछ नया अचीव करना चाहते हैं. We find something new.
But the difference is that what a technical person जो interior का course करता है, whoever and he does the courses, he is technical, and the other person who doesn't have the course, he is non-technical. So what we actually suggest as an interior designing, there are two types of interior design you can call broadly. One is the interior designer, and another is the interior decorator. There's a huge difference between interior designer and decorator should know. So often we can say that every people is an interior decorator, not a designer. So decorator means he or she suggests anything changes, rearrangements of things in the room, रीअरेंज करना, कुछ मॉडिफिकेशंस करना, कोई वॉलपेपर लगा देना, पैनलिंग कर देना, या फर्नीचर का लेआउट्स को थोड़ा चेंज करना. दिस टाइप ऑफ चेंजेस वी कॉल एज सॉफ्ट फर्निशिंग्स, यानी changes we made in our bedrooms or the living spaces. And the interior designer is actually the designer who not only decorates the room or the living spaces, but also he is technical. He knows the services, he knows the technical aspects, he knows the structures, he knows the durabilities, services, maintenance, everything. So this chapter I just, as I cited you, this is the introduction to interior designing. Now what is an interior design? If you just find out in Google or any search internet, you'll find lots of definitions. Basically, without I'm auditing the lines what I've wrote, I tell you one thing. Interior design actually is the art and science, combination of art and science actually, which gives us whatever. When we do an interior designing, we even hire some interior designer and we do the work of a living room or a bedroom, whatever we do, we feel that we are feeling good, हमें pleasing लगता है, अच्छा लगता है. But technically we call it aesthetics. So what is interior designing? Interior design is the art and science of enhancing the interior aesthetics of the space or building, right? So you can see, disconnect on your. Anyway, I just request anyone not to talk right now so that you can listen me properly. So anyone hears some other engagements, may just mute the mic, okay? Anyway, so what is an interior designing? Interior design is art and science. So why we call it art and science? What is the part of the art here? I should tell you. This is the second slide I've made. Why we call it art? Because it also involves creativeness, also involves forms of expression, our imagination and skills, origin of our mind. Okay, so why we call it art? Because it basically needs what's in your mind. आप कैसे सोचते हो, आप फिलोसॉफिकल हो, आप रिसर्च कर रहे हो, या आप जो भी यू वांट समथिंग, मेरा अपना क्रिएशन है, आई वांट टू सजेस्ट इट, मुझे उसको बनाना है, बनवाना है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, वैसा अच्छा नहीं लगता. Whatever these are feelings, these are the creations of your own mind. So that's why we need some creativeness to be an interior designer. Second thing is the part is the science. Why we also called it is a part, some part is also science, because एक होता है कि मुझे अच्छा लगता है, एक होता है कि मुझे ऐसा बनवाना है. But practically, if you want to make it, you have to prepare some drawings, some basis of and platforms of making the drawing. So you have to prepare the drawings, you have to make the drawings, you have to give to the contractor, you have to give to the mystery, whatever you call. So उसको बनाना है. So why we need science? Because there are certain units of measurements. ऐसा तो नहीं कि free hand sketch बना दिया उससे बन जाएगा. It can't be done. So we have to prepare some drawings which need some units of measurements. There is a scale. Scale, हमें scale से बनाते हैं, सारा measurements होता है उसमें. And there is also application of science and technical aspects. Technical aspects because एक building में we know that there are certain structural members also. मैं इतना यानी detail technically नहीं बोलूँगा because presently lots of people are not from the field of interior designing. But everyone knows एक building में slab होता है, beam होता है, columns होता है, column को हम लोग post बोलते हैं. So in चीज को, these are the things we have also taken care of while designing. This can create obstructions, this can create restraints to your design. So why we need science also for interior designing? Because besides measurements and scales, we also have to know what are the structural members of the building, what are the services aspects like plumbing, pipe का पानी का pipe कैसे ले जाना है, electrical wiring कैसे ले जाना है, beam में column आ गया बीच में. So this lot of things also engage as an interior designer who should also be technically sound. So that's why we call is a combination of art and science. एंड वन थिंग जो हम लोग कहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग, एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा. नॉर्मली वी से वहाँ का इंटीरियर इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक द इंटीरियर डिजाइनिंग व्हाटएवर. व्हाई वी लाइक, दिस इज अ क्वेश्चन. वी नो दैट वी लाइक इट,
but why? There should be some reason. Someone can prove it why he is liking. That is we called aesthetic. So aesthetic is what is we call aesthetic. It is the beautification with a definite function, which is also technically correct. Means अच्छा लगना ही नहीं सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, अच्छा लगने के साथ उसका कोई फंक्शन होना होगा. फंक्शन का मतलब उसका कोई यूज होना होगा. ऐसे ही हवा में नहीं लटका दिया सीलिंग को, उसका कुछ कारण है, शायद बीम को छुपा रहा. फॉल्स सीलिंग क्यों करते हैं? अच्छा लगता है, लेकिन फंक्शन क्या है? बीम को छुपाना. तो एस्थेटिक्स को हम लोग तब बोलेंगे विच हैज अ फंक्शन, ब्यूटी लेकिन फंक्शन है उसका, कुछ कारण है. सेकेंड थिंग, उस लाइन में ब्यूटिफिकेशन विद डेफिनेट फंक्शन विच इज ऑल्सो टेक्निकली करेक्ट. और तीसरा एक चीज में इसमें ये भी है, अच्छा लगने के साथ कोई फंक्शन के साथ टेक्निकली उसको करेक्ट भी होना है. यानी बाद में कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत ना है, बाद में सर्विसेज प्रॉब्लम ना हो कि मैंने फॉल्सिंग कर दिया, मैंने वायरिंग का कोई जैसे कोई वायरिंग फॉल्सिंग के अंदर सारा हमें पता है कि वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है या HVAC का होता है, AC का पाइपलाइन भी जाता है. So we also have to keep some aspects for later so that services can be done. So जब ये तीन चीज मिलके कोई चीज अच्छा लगने लगता है, then we call technically aesthetics. We don't say it is beautiful. In interior designing we don't say it is beautiful. We say it is aesthetically correct. That is अच्छा लगने के साथ ये भी include है. Anyway, so एक टर्म्स और आता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, वो स्पेस. व्हाट इज स्पेस? स्पेस यानी कोई भी जगह, द प्लेटफॉर्म, द बेस वेयर वी वॉक, कोई खाली जगह. These are the definitions. So building, everyone know what is a building, any structural element which creates space or for use. So space है, उसके बाद building. Building can be a RCC building, can be an Assam type house also. So whichever is a structural element which gives us a platform to walk as an interior designing. So building हो गया. Planning. अब नॉर्मल जो इंटीरियर डिजाइनिंग के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, ये कुछ टर्म्स है जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. मैं आज इसको क्लियर करना चाहता हूँ. इफ यू पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, नॉर्मली लोग बोलते हैं यार नक्शा बना दो, यार नक्शा बना दो, मुझे एक नक्शा चाहिए. लोग कहते हैं व्हाट इज नक्शा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड प्लानिंग. यू शुड नो दिस टर्म, इसलिए मैंने आज लिख दिया प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग वी नो, कुछ चीज का प्लानिंग करना, किसी मेरा एक टारगेट है उसको अचीव करना. So planning is the first and foremost activity in the process of thinking about the activities required to achieve a desired goal. कहने का मतलब ये है कि आपको बोला गया या आप चाहते हो कि ये मेरा बेडरूम है, इसका मुझे कंप्लीट इंटीरियर चेंज करना है या नया कुछ बनाना है. The day you first day you start thinking, that is the planning you have going in mind. आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा. So these are the thoughts, these are the which we are going to implement later. This we can call the planning stage. प्लानिंग में सब कुछ आ जाएगा. आपको कैसे ड्राइंग बनाना है, किस तरह का थीम लेके बनाना है, आपको डिजाइन क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बाद में मटेरियल्स कैसे आपको प्रोक्यूर करना है, मटेरियल्स कैसे सिलेक्शंस करना है. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग पार्ट. अगेन अनदर थिंग इज डिजाइन. देखो डिजाइन जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, दे टर्म डिजाइन की हमें कुछ डिजाइन बनाना है, कागज लिया, कलम लिया, उसमें पेंटिंग कर दिया, उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, दैट इज डिजाइन. नो, बट इंटीरियर डिजाइनिंग में डिजाइन उसको हम लोग नहीं बोलते. दैट इज नॉट डिजाइन. देखो, दिस शुड बी वेरी क्लियर इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिजाइनिंग. दिस द वर्ड डिजाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फील्ड्स. एक आर्टिस्ट, पेंटर के लिए डिजाइन का मीनिंग कुछ और है, इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स के लिए डिजाइन का मीनिंग कुछ और है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर जो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यानी कॉलम्स, बीम, फाउंडेशंस वगैरह का डिजाइन करते हैं, उनके लिए ये डिजाइन का मीनिंग कुछ और है. इन टेक्निकल टर्म्स डिजाइन डजंट मीन कि कुछ डिजाइन यानी कागज पे कुछ ड्रॉ कर दिया, कुछ मैंने पेंट कर दिया, कलर कर दिया, कुछ ड्रॉ किया, पैटर्न बना, उसको डिजाइन बोल दो. नो, डिजाइन इज एक्चुअली अ प्रोसेस. आप जैसे प्लानिंग कर रहे थे, आप ड्राइंग में आ जाओगे. वी विल प्रिपेयर द ड्राइंग्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, जो भी हमारा ड्राइंग बनता है, जिस ड्राइंग से काम होगा. तो मैंने जैसे लिखा है इस पे, डिजाइन एडिंग डिटेल्स ऑफ ऑल द फर्नीचर, इक्विपमेंट, हार्डवेयर प्लेसमेंट्स, यानी आपको कहाँ का क्या क्या फर्नीचर प्लेस करना है, कहाँ का आपको हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह, अप्लायंसेस वगैरह फिक्स करना है, पूरा सर्कुलेशन घर का कैसा होगा, एवरीथिंग अकाउंट्स टू द डिजाइन. सो डिजाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैंने बार बार बोला कि सिर्फ एक ड्राइंग बना दिया, कोई स्केच कर दिया, दैट इज नॉट डिजाइन. लोग नॉर्मली पीपल से कि इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट डिजाइन करता है. नो, डिजाइन इज एक टेक्निकल टर्म फॉर अस. हाँ, आर्टिस्ट या पेंटर के लिए डिजाइन का मीनिंग कुछ और है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए डिजाइन का मतलब ये है कि बिल्डिंग अगर G+4 है, उसमें यानी कॉलम्स के अंदर कितना सरिया यानी कितना लोहा या रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, या G+8 के लिए कितना देना पड़ेगा, दैट इज हिज डिजाइन. सो डिजाइन इज एक्चुअली टेक्निकल टर्म. इट इज नॉट अ कॉमन टर्म कि जैसे पेंटर्स और आर्टिस्ट यूज करते हैं.
Anyway, another word is plan. Normally people think that plan, often people also call it plan. There's a difference between a plan and plan. Plan का मतलब जैसे we know the planning को plan भी बोलते हैं कि क्या plan है भाई. But in architecture or interior designing, plan is also a technical term. इसका एक टेक्निकल लाइन वर्ड है, इसका मीनिंग है द टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द स्पेस फ्रॉम अबव. यानी कोई भी चीज अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, जैसे मैप होता है, जैसे हम लोग मैप देखते हैं, इंडिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, दैट इज अ टू डायमेंशनल फ्रॉम अबव, हम लोग जैसे सैटेलाइट से देख रहे हो. सेम विद द प्लान इन आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग. तो हम लोग कोई भी चीज जैसे ऊपर से टू डायमेंशन में देखते हैं, ओनली द फोर कॉर्नर्स और द फोर सराउंडिंग लाइंस कम्स, देन वी कॉल इट ए प्लान टू डायमेंशन में. एंड वन अनदर वर्ड, मैं ज्यादा टर्म्स नहीं बता रहा, एवरीवन इज नॉट फेमिलियर विद दिस टर्म्स, बस बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ. अनदर वर्ड इज एलिवेशन. एलिवेशन मीन्स एनीथिंग. आप एक रूम में बैठे हो, आपके सामने जो चार दीवारें हैं, द फोर वॉल्स इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप किसी एक वॉल को, इफ यू सी द वॉल from one side in two dimension only, then we call it an elevation. सेक्शन का मतलब सिंपली ये है कि जैसे सेक्शंस बहुत से लोगों को पता है, जैसे दूसरे फील्ड में भी यूज होता है, जैसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जो भी है. तो सेक्शन इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्चर में क्या है, कोई भी एलिमेंट्स को, जैसे कोई वॉल है, कोई सीलिंग है, उसको हम लोगों ने बीच से काट दिया, वी जस्ट स्लाइस्ड इट ऑफ. उसके अंदर क्या क्या है उसको दिखाना है मुझे, अंदर क्या क्या लेयर्स है, मटेरियल्स है, एलिमेंट्स है, उसको दिखाने के लिए अगर हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं in two dimension, then we call it section. And 3D view, as we all know, 3D view का मतलब ये हो गया एक perspective view जो हमें actual 3 dimensions में दिखे, and we feel, look and feel, यानी actual लगना, real लगना कोई view 3 dimensions में. So these are some basic terms interior designing में use होता है, मैंने इसलिए introduce कर दिया. So you should know before you go to learn interior designing or have interest in interior, you should know these basic terms. So कोई technical meaning है. Anyway, we come from the second part now. Just as I told you that what is an interior design. अब interior design का काम क्या क्या स्कोप से एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग आपको करना है, या इंटीरियर डिजाइनर को करना है, या आप भी अपना खुद में कुछ घर पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, वांट सम चेंजेस, इनोवेशंस इन योर हाउस. सो देयर आर सर्टेन स्कोप्स, कोई जगह, स्पेस जहाँ पे हम लोग इसको करते हैं. एज यू कैन सी स्कोप्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन इन स्पेस. वन इज फ्लोरिंग. फ्लोरिंग जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे टाइल्स लगना, नॉर्मली टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं. दिस आर द हार्ड फ्लोरिंग, यानी हार्ड सर्फेसेस. एक होता है सॉफ्ट का मतलब है जैसे कारपेट लगा दिया, कारपेट बिछा दिया, मैट बिछा दिया. कभी कभी हम लोग टाइल्स के ऊपर मैट भी लगा देते हैं, जैसे आपको मार्केट में मिलता है रेडीमेड मैट, वुड फिनिश का, रस्टिक फिनिश का. सो दीज आर द टाइप ऑफ सॉफ्ट फर्निशेस, सॉफ्ट फ्लोरिंग. सो फ्लोरिंग एक स्कोप है जहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर का स्कोप का काम शुरू होता है फ्लोरिंग में, जैसे मैंने बताया हार्ड एंड सॉफ्ट. सेकेंड स्कोप हो जाता है सीलिंग के जस्ट ऊपर. सीलिंग में क्या करना. तो सीलिंग में हम लोग जैसे बोलते हैं फॉल्स सीलिंग हम लोग बोलते हैं. एक्चुअली टेक्निकली इट इज नॉट फॉल्स सीलिंग, टेक्निकली इट इज कॉल्ड रिसेस सीलिंग टर्म, बिकॉज दैट सीलिंग इज हैंगिंग रिसेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल स्लैब. तो जो हम लोग सीलिंग के स्कोप में काम करते हैं, कोई भी डिजाइन करते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग. सीलिंग we can design in whatever POP, gypsum, ply, everything, anything material can be anything, but the scopes in the ceiling we call the recessed ceiling, what we prepare, हम लोग जो बनाते हैं, that is another scope of interior design. Third is the wall surfaces. जो भी internal walls है, या तो brick work है, या तो कोई partition wall है. तो जो wall surfaces vertically जो खड़े हैं, vertical partitions, जो भी surfaces आपको दिख रहा है, आपके रूम में बैठे हो, आपके रूम के चारों दीवार, all the walls, these are the wall surfaces for our scopes of interior design, where we can design for paneling or wallpapers or anything. Fourth scope is the furnitures. जो भी हमारे घर के अंदर या ऑफिस के या कहीं पे भी जो भी furnitures है. Furnitures, there are two types of furnitures in technically. One is called, we call fixed furniture, one is called loose furniture. Fixed are the wardrobes, cabinets. These are also made as a furniture and used as a furniture, but these are already we design and we fix it permanently to the wall or the ceiling, whatever. So furnitures is fixed furniture and loose furniture. And loose furniture is a bed ho gaya, sofa ho gaya, or chair, table, whatever. So these are the loose furnitures. So there is the fourth scope of interior designing is the furnitures, fixed and loose. And the last part in this context, furnishings. यानी फर्निशिंग में आ जाता है, जैसे हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्निशिंग. फर्निशिंग का मतलब ये हो गया
कि ऑलरेडी द फर्नीचर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, आपने डिजाइन किया, बनवा लिया, अब उसमें कुशनिंग करना है, इसके ऊपर आपको कुशनिंग करना है, मैट्रेसेस लगाना है, मैट्रेसेस को बेडशीट लगाना है, बेड कवर लगाना है, फिर विंडोज में कर्टन्स लगना है, ब्लाइंड्स लगना है। दीज आर वी कॉल एज फर्निशिंग्स। सोफा लेदर फिनिश करना है, क्या फिनिश करना है, तो ऑल टाइप्स ऑफ फिनिशिंग अबव द, यानी जो हम लोग का फर्नीचर्स के ऊपर हमें जो या लिविंग स्पेस के ऊपर विंडोज में फर्नीचर्स के में जो भी हम लोग को फिनिशिंग करना है, जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, then we can call it furnishings. अब furnishings में भी soft and hard हम लोग बोल सकते हैं. So hard we can say the all the जैसे blinds हो गया, windows हो गया, carpets हो गया, mattress हो गया, doormat हो गया. These are the hard finishing furnishings जो हम लोग permanently more or less इसको हम लोग use करते हैं. There's another type of soft furnishing. Soft furnishing मतलब है wall अपने paneling वालिंग सब कुछ डिजाइन वगैरह, इंटीरियर डिजाइनर अपने paneling कर दिया, wallpaper लगा दिया. लास्ट में आपको लगता है लास्ट you felt that I should put something wall hanging, I should put some portrait, mural, कोई डिजाइन मुझे यहाँ पे हैंग करना है, then the additional features, additional elements you use at the last to enhance the aesthetics and beauty of the room. जैसे आप वॉल हैंगिंग में कुछ लगा देते हो, वॉलपेपर के ऊपर आप फिर कुछ क्लॉक, एक घड़ी लगा देते हो, एक अपना पोर्ट्रेट लगा देते हो, फैमिली फोटो लगा देते हो, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. या टेबल है, टेबल बन गया, टेबल के ऊपर एक लैंप लगा, आपने लैंप रख दिया. These are the soft furnishings that is temporary, that can be changed time to time, and you can change the positions and locations also. उसके अलावा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इंटीरियर डिजाइन का स्कोप होता है सैनिटरी एंड किचन फिटिंग्स में. जैसे किचन में वी ऑल नो किचन का बेसिन, संक होता है, आपका ये जो भी आपका वाट बेसिन हो गया, सॉरी संक हो गया, आपका गैस स्टोव हो गया, आपका चिमनीज हो गया, रेफ्रिजरेशन नोटिस जो भी अप्लायंसेस लगना है. उसके अलावा उसमें जहाँ पे हम लोग का प्लम्बिंग का मीन्स पानी का जो भी पॉइंट्स होता है, तो वहां पे. उसके अलावा सैनिटरी में जैसे किचन के सारा, जैसे WC इंडियन हो या वेस्टर्न हो, या आपको वहाँ पे बाथ टब लगाना है, ग्लास क्यूबिकल लगाना है, एनीथिंग. दीज आर द स्कोप्स ऑफ वर्क फॉर इंटीरियर डिजाइनर इन सैनिटरी फिटिंग्स. बाथ टब के अलावा आपका वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन बहुत तरह के आते हैं. सो एनीथिंग वी आर प्रोपोजिंग फॉर द इंटरनल फिनिशेस ऑफ द बाथरूम्स एंड किचन्स, वी कॉल इट सैनिटरी एंड किचन अप्लायंस फिटिंग्स. And another scope is the appliances. Appliances का मतलब है टीवी, LED टीवी लगाना है, या किचन में जैसे चिमनी लगाना है, किचन में OTGs लगाना है, किचन में रेफ्रिजरेशन के लिए कुछ लगाना है, स्टोरिंग के लिए कुछ अप्लायंसेस लगाना है, ACs, सारे रूम में AC करना है. सो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, जो एडिशनली लास्ट में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द एक्चुअल यूज, उसका भी एक इंटीरियर डिजाइनर से रिलेशन इसलिए है कि आपने एक अच्छा सा रूम आपने डिजाइन कर दिया, अचानक जो है आपको पता नहीं था कि वहां पे AC का स्प्लिट AC लगना है. समटाइम्स इट मे क्लैश. दिस सॉर्ट ऑफ अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस व्हिच विल बी implemented for the use may also conflict with your design. So we, while working and practicing as an interior designer, we also had to keep some scopes for the electrical appliances to be later fixed. तो उसको भी हमें ध्यान देके करना है. सो बेसिकली एज इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इंटीरियर डिजाइन एक्चुअली आर्ट एंड साइंस है. उसमें इस तरह के स्कोप्स ऑफ वर्क होता है, हम लोग करना पड़ता है, हमें कुछ टेक्निकल भी होना होता है, हमें कुछ आर्टिस्टिक भी होना पड़ता है. नाउ आई कम टू अनदर टॉपिक. ये कुछ टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बता दिया, आर्ट क्या है, साइंस क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, स्पेस क्या है, बिल्डिंग को बोलते हैं, एनीथिंग. सो नाउ सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. इससे पहले मैं आपका इंटरेस्ट लाने के लिए, बिकॉज आई नो मोर ऑफ द पीपल आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, इससे पहले मैं दूसरे स्लाइड में पहले जाऊंगा, दिस वन. नाउ ये आई थिंक एवरीवन विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस स्लाइड्स बिकॉज इट इज नॉट दैट टेक्निकल. बस इतना जानना है कि इंटीरियर डिजाइन का स्कोप क्यों है और क्यों जरूरी. सो आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाई वी नीड इंटीरियर डिजाइनिंग, what is his role, what is his importance. Now as the headline says, why we need correct, proper, functional and good interior designer. So why I have written such 4 words. correct, proper का meaning एक जैसा है, फिर भी मैंने क्यों लिखा, there is a reason. So I wrote why we need correct, proper, functional and good interior designing. Correct means technically correct, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, yes or no. Proper का मतलब है there may be 2 options. The difference between correct and proper तो यही हुआ ना. Correct means yes or no. Proper का मतलब है there can be 2 or 3 options. Now you have to suggest as per your knowledge, as per your experiences,
कि नहीं इससे अच्छा ये होगा. So there are lots of choices while we practice as an interior designer, while we don't practice or even we try to suggest in our own living room or bedroom whatever, you will find आप कभी कभी confuse हो जाओगे. You will be confused yourself कि यार मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, उस तरह भी अच्छा लगता है, कैसे क्या करूं. So there may be some options in your mind. So you have to finally select and choose something in design, in material or whatever. So I wrote proper. Another thing is functional. Functional, as I already told you, function is a very important point in architecture and interior designing. Function का मतलब ये हो गया, it should be हवा में ऐसे ही नहीं लगाना है, कुछ उसका कारण होना होगा. There should be some specific reason. So जिसका कोई purpose हो, then we call it functional. जो use होगा, then we call it functional. उसके अलावा है गुड. गुड का मतलब है कि इट शुड बी broadly accepted by you, your family members and your friends, everyone. कहने का मतलब है कि आप अपने बेडरूम का इंटीरियर डिजाइनिंग आप खुद सजेस्ट कर रहे हो. अगर आप इंटीरियर डिजाइन नहीं भी हो, डिजाइनर नहीं भी हो, आपने अपने पसंद से बना लिया, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि गुड होना यानी ब्रॉडली एक्सेप्टेड होना होता है ना लाइफ में. कुछ डिसीजन लेने में यार मुझे सिर्फ अकेले मुझे ही अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, देन यू कैन बी कंफ्यूज लेटर ऑन दैट पार्ट. ऐसा भी होता है कि यू विल बी समटाइम्स आप ये फील कर सकते हैं कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया. सो व्हाई आई यूज दिस वर्ड गुड इंटीरियर डिजाइनिंग, बिकॉज इट शुड बी फंक्शनल प्रॉपर के अलावा यू एंड योर मैक्सिमम पीपल शुड बी सेटिस्फाइड. एनीवे, अब फर्स्ट स्कोप ऑफ इंटीरियर डिजाइन कहाँ से शुरू होता है? व्हाई व्हेन वी स्टार्ट द स्कोप ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग is, as I wrote, after completion of civil works or superstructure. यानी एक बिल्डिंग, जैसे you can see in the photo, you can see in the right side you can see that इसका superstructure. So what is superstructure? You should not know in such technical terms, not being of the field. Simply speaking, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, कॉलम्स खड़े हो गए, स्लैब्स आरसीसी स्लैब्स कास्टिंग हो गया, बस ब्रिक वर्क या तो हो गया या तो नहीं भी हुआ. दैट वी कॉल ए सुपरस्ट्रक्चर. तो सिविल वर्क का मतलब ये है जो हैवी वर्क्स होता है. आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके टर्म्स में हैवी वर्क्स हो जाएगा. स्ट्रक्चर आरसीसी कॉलम बीम स्लैब सब कुछ बन गया, कास्ट हो गया. उसके बाद ब्रिक वर्क भी, मैंने जैसे बोला, ब्रिक वर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो जो मेजर काम है, जो हैवी इक्विपमेंट्स का काम है, उसका काम खत्म हो गया. देन वी कॉल द सिविल वर्क्स आर कंप्लीटेड. सो सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद एक इंटीरियर डिजाइन का स्कोप शुरू हो जाता है. वी स्टार्ट द स्कोप ऑफ द इंटीरियर डिजाइन. नाउ एज आई रोट हाउ टू स्टार्ट. The first line, as you can see, form follows function and function follows form. Actually, this line has been derived from what in the field of architecture. I am being an architect, so we call the father of architect was Frank Lloyd Wright. So Frank Lloyd Wright was the father of architect who introduced architecture in the modern world. So उन्होंने एक लाइन बोला था, फॉर्म फॉलोज फंक्शन एंड फंक्शन फॉलोज फॉर्म. यू शुड नॉट नो द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट इतना सिंपली इसका मीनिंग ये है, अगर आप कोई पहले से कोई डिजाइन दिमाग में लेके चल रहे हो, आपके दिमाग में एक डिजाइन है, आप कोई डिजाइन आप सोच रहे हो कि मुझे इस तरह का कर्व डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना जो बेडरूम में जो है मैं पैनलिंग में ऐसा कुछ कर्व करूंगा, ऐसा कुछ डिजाइन लूंगा. तो फॉर्म शुरू हुआ आपका दिमाग में पहले, यू हैव स्टार्टेड द फॉर्म इन योर माइंड, लेकिन इट शुड एंड अप इन फंक्शन. यानी उसका एंडिंग फंक्शन, इसका यूज होना होगा. आपने बना दिया, यूज नहीं हुआ, देन इट बेकार है. सेम देयर इज वन डिजाइन एक्सपेक्ट कि पहले दिमाग मेरा फॉर्म चल रहा है, यार मुझे ज्योमेट्रिक शेप्स अच्छा लगता है, मैं अपने लिविंग रूम में वॉल पैनलिंग में सीलिंग वगैरह में मैं ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करूंगा. तो पहले आपके दिमाग में कोई फॉर्म चल रहा है, लेकिन उसका एंडिंग होना है फंक्शन में, उसको यूज भी होना है, देन वी कॉल फंक्शन फॉलोज फॉर्म. यानी फंक्शन ने फॉर्म को फॉलो किया. यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्म, वेरी इंटरेस्टिंग. कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले आपने डिजाइन कर दिया, बाद में आपका फॉर्म निकला. यानी आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बना दिया, बाद में उसका कोई शेप निकला, फॉर्म निकला, शेप निकला, डिजाइन निकला, देन उसका रिवर्स हो जाता है. तो सिंपली स्पीकिंग दो चीज है, आपको पहले मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ. एक होता है उसका फंक्शन क्या यूज है, दूसरा उसका डिजाइन क्या है. पहले डिजाइन करके फॉर्म निकालना, शेप निकालना, डिजाइन निकालना, या पहले डिजाइन करके फिर उसका फंक्शन, उसका यूज करना. There are two aspects of starting an interior design. Second line is that, defines the space into all its required
और डिजाइन डिटेल्स। कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, राइट साइड में वाला फोटो जो सुपर स्ट्रक्चर या सिविल वर्क कंप्लीट होने के हुआ है, उसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है, इंटीरियर डिजाइनर नहीं हुआ, कुछ भी डिफाइंड नहीं है कहाँ पे क्या है, नहीं है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग क्या कर रहा है, इट इज डिफाइनिंग ऑल द एक्सपेक्ट्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स, वट एवर यू हैव, इसको डिफाइन कर दे रहा है। नंबर 3, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड फंक्शन इन यूजेस। वही चीज है, यानी आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, यार मुझे एलईडी टीवी इधर लगाना है, मुझे उधर सोफा लगाना है, ये लगाना है, वो करना है, तो वट एवर मे बी द यूज ऑफ द यूजर्स, आपका जो यूजर्स है वो आपको फुलफिल कर देगा। थर्ड पॉइंट इज द सेम एस्थेटिक्स एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्पेस टू लेट अस फील एंड अपीलिंग, टू लेट अस फील अपीलिंग एंड प्लीजिंग, यानी एस्थेटिक्स या ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाना। तो एक नया काम जब हम शुरू करते हैं उसके कुछ रीजंस होते हैं, ये चीज फुलफिल करता है, दिस आर द पॉइंट्स। सेकंड, सेम टाइप ऑफ यानी एग्जांपल आई गिव यू, बिफोर एंड आफ्टर, यानी सिविल वर्क कंप्लीट के बाद इसके इंटीरियर डिजाइन के बाद डिफरेंस देखिए, यू कैन सी इन द स्लाइड क्या डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। जब इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं हुआ और इंटीरियर डिजाइन होने के बाद एवरीथिंग इज डिफाइंड, सब कुछ डिफाइंड है कि कहाँ पे कैबिनेट है, कहाँ पे टेबल लगना है, कहाँ पे काउंटर टेबल है, कहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, कहाँ पे शेल्व्स है, कहाँ पे वॉल हैंगिंग आपने कुछ लगाया, एनीथिंग एवरीथिंग इज डिफाइंड। नाउ इंटीरियर डिजाइन का एक और एस्पेक्ट है फंक्शनल करेक्शंस। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो अभी फिलहाल इंटीरियर डिजाइनिंग के बैकग्राउंड से नहीं भी है, उनके लिए भी जरूरी है। अगर आप अपने घर पे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि मुझे कुछ फर्नीचर का प्लेसमेंट चेंज करना है, या कुछ रिनोवेशन करना है, या कुछ रीअरेंजमेंट करना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल करेक्शंस होता है। नाउ यू कैन सी इन द बिफोर एंड आफ्टर में, बिफोर सिंपली सपोज शायद दिख रहा होगा, द बेड लोकेशन इज टोटली रॉन्ग। बेड का लोकेशन, बेड का जो हेड है, जो बैक है, जिधर आप सर रखते हो, वो विंडो के बिल्कुल सामने है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, विंडो के सामने नहीं है, बैक में आपको एक वॉल मिला। नाउ फंक्शनल करेक्शन इसलिए जरूरी होता है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोमेट्री। सिंपली स्पीकिंग एर्गोनॉमिक्स और एंथ्रोपोमेट्री कुछ नहीं है, सिंपल एक ह्यूमन बीइंग, इंसान को कितनी कितनी जगह चाहिए बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, बेड के लिए, मूवमेंट के लिए, एवरी फंक्शन जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, we have some standards of spaces we required। एक मेजरमेंट्स होता है कि मुझे इतना स्पेस बैठने के लिए चाहिए, इतना स्पेस सोने के लिए चाहिए, हाथ को मूव करने के लिए, विंडो को खोलने के लिए, टेबल के चेयर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोमेट्री। आपके लिए इतना ही है। तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स को हमें फुलफिल करना है कि जो रिक्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड होता है लो इंसान को, वो फुलफिल हो। दूसरा ये कि ऑल फर्नीचर फिक्स एंड लूज लेआउट्स एंड प्लेसमेंट्स, यानी जो भी आपका फर्नीचर है प्लेसमेंट्स, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट करना। प्रॉपर प्लेसमेंट का आपने, यू माइट हैव ऑब्जर्व योरसेल्फ, समटाइम्स क्या होता है आपके रूम में जो भी फर्नीचर है, सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर स्पेस निकल जाता है। ये तो सब एक्सेप्टेबल है, सब लोग एक्सेप्ट करते हो। अरेंजमेंट के ऊपर कि बेड को ऐसे, बेड है, स्टडी टेबल है, वार्डरोब या गॉडरेज जो भी आपके रूम में है, एक अरेंजमेंट में देखिएगा कि आपका जो मूवेबल स्पेस है वो कम हो सकता है, दूसरे ऑप्शन में आप करके देखना कि उसमें ज्यादा स्पेस निकलता है। तो जो प्रॉपर प्लेसमेंट्स होता है फर्नीचर्स का एक रूम में, वट एवर मे बी द फर्नीचर, जैसे एक बेडरूम में बेड बेड जैसे मैंने बताया, उसको अगर प्रॉपर आपने एक ही यानी प्रॉपर पोजिशन में आपने लगा दिया, तो मूवमेंट स्पेस ज्यादा क्लियर मिलेगा। सो इसलिए मैंने लिखा ऑल फर्नीचर फिक्स एंड लूज लेआउट्स एंड प्लेसमेंट्स। एक और फैक्टर है क्लाइमेटोलॉजी। Before that I will just have to have a screenshot because the time is around 5 to 7 minutes right now। मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ सबका। ओके, बैक अगेन। सो एक होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है अब अपने घर पे हो, कहीं कहीं पे आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार धूप कम आ रही है, रोशनी कम है, कभी कभी यार मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, हवा पानी नहीं आ रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है यार। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब हम एक रूम का लेआउट करते हैं या डिजाइन करते हैं या खुद से भी कुछ चेंजेस करते हैं। तो यू हैव टू क्लेम ऑफ टाइम, उस सब्जेक्ट को एक्चुअली टेक्निकली सब्जेक्ट को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो उसमें डेलाइट फैक्टर्स, एयर सर्कुलेशन, रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं, वो सब हम लोग देखते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्रेशन ऑफ इनहेबिटेंट्स का मतलब इतना है कि एक बेडरूम है, ऑब्वियसली बेडरूम में आपको एक प्राइवेसी चाहिए।
आपको ऐसे देखना है कि बराबर जो नेबर्स है या दूसरे का घर है वहां से खिड़की का लोकेशन डायरेक्ट ना दिखे या दूसरे रूम से आपको प्राइवेसी मिले। तो अरेंजमेंट ऑफ द रूम एंड अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर ऑल्सो मे एनहांस द प्राइवेसी फैक्टर्स। तो प्राइवेसी इज ए फैक्टर। और एक चीज बहुत जरूरी है, स्कोप्स ऑफ सर्विसेज एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस। कहने का मतलब ये, आपने जो भी डिजाइन किया, आपने जो भी रिनोवेशन किया, डिजाइन किया, नया बनवाया, पुराने को किया, आपको हमेशा कुछ स्कोप्स बाद के सर्विसेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए छोड़ना। जैसे मैंने बताया, आपने आज फ्लोरिंग के अंदर से आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग या वैसे लेके नहीं जाते हम लोग, मान लीजिए लेके गए, तो बाद में वायरिंग में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ फ्यूज हो गया या जल गया, कुछ भी हो गया, नहीं इसका मतलब क्या होगा, बाद में आपको पूरा फ्लोरिंग तोड़ना पड़ेगा या तो सीलिंग में। सो देयर शुड बी सम स्कोप्स, जितना पॉसिबल है हमें कुछ स्कोप्स ऐसा रखना है ताकि बाद में कभी कुछ प्रॉब्लम हो सर्विसेज के लिए, यानी कुछ सर्विस करने के लिए, ठीक करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए उसका स्कोप छोड़ा जाए। So come to the next slides. Another example where the location of the furniture is wrong. Same like that कि यहाँ पे बेड का लोकेशन बिल्कुल गलत है, तो बेड का लोकेशन, फर्नीचर का लोकेशन प्रॉपर प्लेसमेंट होना होगा ताकि आपको सर्कुलेशन एक फैक्टर है। सर्कुलेशन जैसे मैंने बताया, सर्कुलेशन का मतलब है जो अंदर का आपका स्पेस खाली जगह है आप मूव करोगे। उसके अलावा विंडो को खोलने में, दरवाजे को बंद करने में, दीज आर द एस्पेक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि प्रॉपर यानी पोजीशन ऑफ द फर्नीचर्स। नाउ दिस इज अनदर फैक्टर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स ऑफ, ये बहुत ब्रॉड है। सिंपली स्पीकिंग देखो, अभी पहले मैंने बताया कि एक नया सुपर स्ट्रक्चर या नया इंटीरियर शुरू होने से पहले क्या काम होगा। फिर मैंने आपको बताया कि फंक्शनल करेक्शंस क्या क्या है। अब एक थर्ड चीज मैं बता रहा हूँ जो गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपके मूड के ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रॉडली सबको पता ही होगा कि हम लोग बोलते हैं क्लासिकल, यार मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, उसमें कॉर्निशेस होता है, मोल्डिंग्स होता है, ये होता है। कोई कोई लगता नहीं यार मुझे मॉडर्न अच्छा लगता है, मॉडर्न में ग्लास वास यूज करो, स्टील का फर्नीचर यूज करो। कोई कोई वो सोचता है कि नहीं मुझे बड़ा एंटिक, पुराने जमाने का कुछ पर्टिकुलर टाइम जोन का मुझे वैसा अच्छा लगता है। कोई कहेगा नहीं मुझे सेमी क्लासिकल, मॉडर्न क्लासिकल में थोड़ा अच्छा लगता है। सो एवरीवन हैज डिफरेंट टेस्ट। हमारे इंटीरियर डिजाइन का कोई स्कोप या लिमिट नहीं है, बट नथिंग इज इनकरेक्ट, सब करेक्ट है। आपको क्या अच्छा लगता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्लासिकल अच्छा लगता है, एंटिक अच्छा लगता है, जो भी हो, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल या एंटिक, जो भी हम लोग ब्रॉडली बोलते हैं। वैसे तो थीम्स बहुत है, मैं ब्रॉडली आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मॉडर्न क्लासिकल जो भी आप लोग बोलते हो। सो उस पर भी डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन यू। सो कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स ऑफ डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, मैंने बोल दिया कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ट्रेंड्स इन टाइम एंड हिस्ट्री, ट्रेंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। डिजाइन जो है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ थीम्स ऑफ डिजाइन जो है वो इम्प्रोवाइज होता रहता है, स्पेशलाइज होता रहता है। बोहेमिक कल्चर, ये कल्चर यानी आर्ट डेको स्टाइल नया नया आजकल आने लगा ट्रेंड में। तो ट्रेंड के हिसाब से भी आपका यानी आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। यार मैंने उस जगह पे मेरे फ्रेंड के घर गया था, वहां ऐसा बना था, यू मे नॉट नो व्हाट इज द स्टाइल, मुझे वैसा ही चाहिए। मे बी दैट इज सम सॉर्ट ऑफ आर्ट डिको स्टाइल, एक नया नाम है आर्ट डिको। मे बी सम कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल, मे बी सम कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल मॉडर्न। सो जो मैं ये बोल रहा हूँ थीम एंड कॉन्सेप्ट, वो किसी का भी अलग हो सकता है। बस हमें उसको कैसे, उसको होता है ना कि मैंने ये थीम चूज किया, मॉडर्न में ही जाना है, मॉडर्न में ही करना है, तो मॉडर्न की थीम को ही मुझे रिटेन करना है। Mimi jana kakuya sana. एनीवे द थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइज और इम्प्रोवाइज डिजाइन फॉर पर्टिकुलर टाइम एंड जोन, ये भी मैंने बता दिया। उसके अलावा है कि डिजाइनिंग कोरिलेशन टू मैक्रो और माइक्रो लेवल। सिंपली स्पीकिंग, डिजाइनिंग कोरिलेशन टू मैक्रो लेवल का मतलब ये है, या तो आप पूरे घर का, 2 बेडरूम है